آج ہم پاک کلام میں سے پڑھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 16 آیت۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ آمین۔ ویسے آپ کے دلوں میں یہی آیت ہے کہ اس کے علاوہ بھی اہل عتیق، اہل جدید، انبیاء اکبر، انبیاء اصغر، شریعت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، آپ کے دلوں میں بائبل مقدس کی 66 کتابیں پیدائش سے لے کر مکاشفت تک ہونی چاہیے اور آپ کے ہاتھ میں بھی ہونی چاہیے۔ آج جب تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرنا۔ بے شک تمہارے گناہ کرمزی رنگ کے کیوں نہ ہو، وہ برف کی مانند سفید ہو جائے گی۔ کتنے لوگ بائبل مقدس کے احکامات کو، بائبل مقدس کی تربیت کو ہم غور سے سنتے ہیں، ہم چرچ جاتے ہیں، ہم عبادات میں جاتے ہیں، ہم پرستش کرتے ہیں، ہم ظہور لگاتے ہیں، گیت گاتے ہیں، لیکن برکت ہم سے دور ہے، سرفرازی ہم سے دور ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میں نے تمہیں چن لیا، خدا نے ہمیں چن لیا ہے۔ ہم کب خدا کو چنیں گے؟ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا آپ سب کے لیے قربان کیا کیونکہ اس نے آپ کو چنا ہے۔ کتنے لوگ خدا کو چن چکے ہیں؟ بائبل مقدس پر ایمان رکھنے والے ایجادات کرتے ہیں، بائبل مقدس پر ایمان رکھنے والے معجزات کرتے ہیں، بائبل مقدس پر ایمان رکھنے والے دنیا کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں۔ بائبل مقدس دنیا کی پہلی کتاب ہے جو چھاپا خانہ میں چھاپی ہے۔ بائبل مقدس دنیا کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ تقریباً 3000 زبانوں میں ہو چکا ہے۔ بائبل مقدس دنیا کی پہلی کتاب ہے جس کا میسیج سیلفون پر بھیجا ہے۔ بائبل مقدس دنیا کی پہلی کتاب ہے جس کی تلاوت خلا میں کی گئی۔ بائبل مقدس دنیا کی پہلی کتاب ہے جس کا میسیج ریڈیو پر چلا۔ پھر بائبل مقدس کی تربیت کو، بائبل مقدس کے احکامات کو سننے والا، اپنی زندگی میں شامل کرنے والا کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ جن قوموں نے، جن قبیلوں نے، جن ملکوں نے بائبل مقدس کو اپنی زندگی میں شامل کیا، اپنے کاروبار میں شامل کیا، اپنے ملکی آئین میں شامل کیا، خدا نے ان قوموں کو، قبیلوں کو، ملکوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وہ قومیں، وہ قبیلے پوری دنیا پر غالب آ چکے ہیں۔ آپ جب یورپ کو دیکھتے ہیں، آپ جب امریکہ کو دیکھتے ہیں، بائبل مقدس پر ایمان رکھنے والے پوری دنیا پر غلبہ پا چکے ہیں۔ لیکن پاکستانی مسیحی ہم پیچھے رہ گئے۔ وہی 66 کتابیں، وہی شریعت کی کتابیں، وہی تاریخ کی کتابیں، وہی انبیاء اکبر، وہی انبیاء اصغر، اہل عتیق، اہل جدید، ساری تربیت کو لینے کے بعد بھی ہم پاکستانی مسیحی پیچھے رہ گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے تربیت کو رد کرنے والا رسوا اور کنگال ہے۔ تربیت کو رد کرنے والا رسوا اور کنگال ہوگا، لیکن جو تربیت کا لحاظ رکھے گا وہ برکت پائے گا، وہ سرفراز ہوگا۔ وہ قومیں ہو سکتی ہیں، قبیلے ہو سکتے ہیں،
अब बाइबल मुकद्दस में मूसा के 10 अहकामात को सुनते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में शरीयत की किताबों में हमें 613 अहकामात मिलते हैं। हमारे लिए 10 पर अमल करना बहुत मुश्किल है, तो 613 अहकामात पर हम कैसे अमल कर सकते हैं? इंसान के लिए मुश्किल है। कैसे हम खुदा के सारे अहकामात को अमली तौर पर उन पर अमल कर सकते हैं? कैसे हम बुराई से दूर रह सकते हैं? अंबिया ने, पैगंबरों ने, रसूलों ने गलतियां की, गुनाह किया, पूरी तरह से वो भी खुदा के हुक्मों पर न चल सके। पूरी तरह से खुदा ने उनको चुना, खुदा ने उनको बरकत दी, खुदा ने उन्हें इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी इंसान गलती करता है, फिर भी इंसान तरबियत का इनकार करता है। खुदा ने आपके लिए बरकत रखी है, खुदा ने आपके लिए कामयाबी रखी है, खुदा आपको सरफराज करना चाहता है, क्योंकि उसने आपको चुना है। अगर आप दुनिया की सारी तालीम को हासिल कर लें, अगर आप डॉक्टर बन जाए, अगर आप इंजीनियर बन जाए, अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाए, अगर आप फार्मासिस्ट बन जाए, अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट बन जाए, अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट बन जाए, प्रोफेसर, टीचर या कोई भी दूसरा प्रोफेशन, तब तक आपकी तालीम मुकम्मल नहीं जब तक बाइबल मुकद्दस की तदबीर, बाइबल मुकद्दस की तालीम आपकी जिंदगी में शामिल नहीं हुई। आज बहुत से लोग दुनिया का सारा इल्म हासिल कर चुके हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस जो कि खुदा का जिंदा लातब्दील कलाम है, जो तरबियत की किताब है, ए बुक ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो अहकामात की किताब है, जो सरफराजी की किताब है, जो तसल्ली की किताब है, छुटकारे की किताब, उसको इनकार करते हैं। फिर कैसे हम अपनी बरकत को ले सकते हैं? हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं खुदा ने बनी इस्राएली कौम को चुना, खुदा ने उनके लिए अंबिया को भेजा, उनकी तरबियत के लिए, खुदा ने उनके लिए रसूलों को भेजा, उनकी तरबियत के लिए, खुदा ने उनके लिए पैगंबरों को भेजा, उनकी तरबियत के लिए, खुदा ने उनके लिए 42 बादशाहों को भेजा, उनकी तरबियत के लिए, क्योंकि खुदा ने इब्रानियों को चुन लिया, खुदा उनकी तरबियत करना चाहता था, खुदा उनकी इस्लाह करना चाहता था, क्योंकि खुदा ने उनको चुना था, खुदा ने बरकत पर बरकत देना चाहता था। लेकिन इब्रानियों ने हमेशा तरबियत का इनकार किया। फिर हम देखते हैं कि बनी इस्राएल के लोग 430 साल वो मिस्र की गुलामी में गुजारते हैं। 430 साल जिस कौम को खुदा ने चुना हो, 430 साल गुलामी में, 430 साल परेशानी में, 430 साल गुर्बत में, 430 साल मुसीबतों में, 430 साल भूखों में, 430 साल की अजियत। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने उनको चुन लिया। कौन यकीन करेगा? जिस कौम को खुदा ने चुना है, जिन लोगों को खुदा ने चुना है, जो अपने आप को खुदा के बेटे और बेटियां कहते हैं, 430 साल वो गुलामी में गुजारते हैं। हाँ, ये सच है, खुदा ने उनको चुन लिया था, लेकिन इब्रानियों ने
पर इसराइल के लोगों ने खुदा को नहीं चुना था। बस समझ आ गई? खुदा ने उन्हें चुन लिया था, लेकिन उन्होंने खुदा को नहीं चुना था। 430 साल वो मिस्र की गुलामी में गुजारते हैं, और जब खुदा निगाह करता है कि मैं अपने लोगों को, मैं अपनी कौम को, मैं इन इब्रानियों को मिस्र की गुलामी से निकालना चाहता हूं, खुदा ने उनके लिए एक चरवाहा, खुदा ने उनके लिए मूसा को चुना कि मैं अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से निकालना चाहता हूं। मुसीबतों से, दुखों से मैं अपने लोगों को निकालना चाहता हूं। 20 लाख यहूदी, 20 लाख इब्रानी जब मिस्र की गुलामी से निकलते हैं, खुदा को वादा की सरजमीन पर लेके जाना चाहता था, बरकत की सरजमीन पर उनको लेके जाना चाहता था, कामयाबी की जमीन, तरक्की की जमीन, खुशहाली की जमीन, खुदा को वादा की सरजमीन पर लेके जाना चाहता था। 20 लाख यहूदी जब निकलते हैं मिस्र से, और मूसा उनका चरवाहा था, खुदा ने मूसा को चुना। 40 दिन का सफर था, वादा की सरजमीन पर वो पहुंच सकते थे। 40 दिन के बाद वो अपनी बरकत को हासिल कर सकते थे। 40 दिन के बाद वो अपनी सरफराजी को ले सकते थे, लेकिन उनको 40 साल लग जाते हैं। पहले 430 साल, फिर और 40 साल। पाकिस्तानी मसीह कौम को भी खुदा ने चुना है कि मैंने पाकिस्तानी मसीह कौम को निकालना है, छुड़ाना है, बचाना है। खुदा ने आपको चुन लिया है, लेकिन शायद हमने अभी फैसला करना, हम तरबियत का इनकार करते हैं, हम शरीर का इनकार करते हैं, हम अहकामात का इनकार करते हैं, क्योंकि हम मिस्र में रहना चाहते हैं, हम बियाबान में रहना चाहते हैं। मसीह कौम भी निकलना चाहती है। मैं कब मिस्र से निकलूं, मैं कब दुखों से निकलूं। मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने मुझे चुना है। मैं कब निकलूंगा मिस्र से? हाँ, मैं मिस्र से निकल चुका हूं, लेकिन अब मैं बियाबान में हूं। मैं कब वादा की सरजमीन पर जाऊंगा? हम सालों से, दहाइयों से हम कोशिश में लगे हुए हैं। हमारा चरवाहा कहां पर है? कौन हमारा चौपान है जो हमें निकालेगा, जो हमें हरी हरी शाखाओं में बिठाएगा, जो हमें राहत के चश्मों के पास लेकर जाएगा, जो हमारी जान को बहाल करेगा? हमारा चरवाहा कहां है? हमारा चौपान कौन है? मसीह कौम भी निकलना चाहती है मिस्र से, मसीह कौम भी निकलना चाहती है बियाबान से, क्योंकि खुदा ने इनको चुन लिया है। हमारी मुसीबत, हमारे दुख, इजासानी, अज़ियत, परेशानी हम 20 सालों से इस दलदल में उससे जा रहे हैं। सालों से हम कब निकलेंगे? कौन हमें निकालेगा? बड़ी साल के लोग 430 साल, फिर 40 साल, और जब वादा की सरजमीन पर आते हैं, दोबारा से वो कैदी, दोबारा से वो गुलामी में आ जाते हैं। अब अपने ही मुल्क में, अपने ही घर में, अपने मुल्क में आकर, अपने घर में आकर, खुदा की जमीन पर आकर, मुल्क के किनार में आकर, वो दोबारा से गुलाम बन जाते हैं। और इस बार रोमी सल्तनत, अब दोबारा से वो इंतजार कर रहे थे
छुड़ाएगा, कौन तसल्ली देगा, हमारा वक्त नुकसान कब आएगा। खुदा ने बनी इसराइल के लिए 42 बादशाहों को भेजा, क्योंकि खुदा ने उनका चुन लिया था। लेकिन उनके लिए शायद मुश्किल था ये फैसला करना खुदा को चुनना। वो शरीयत को सुनते थे, अहकामात को सुनते थे, सुनकर एक कान से सुनते थे और दूसरे से निकाल देते थे। लेकिन फिर भी क्योंकि खुदा उनसे प्यार करता था, खुदा ने उनके लिए 42 बादशाहों को भेजा, खुदा ने उनके लिए साउल बादशाह को भेजा, खुदा ने उनके लिए दाऊद को भेजा, खुदा ने उनके लिए सुलेमान को भेजा, खुदा ने उनके लिए आसा को भेजा, खुदा ने उनके लिए नदब को भेजा, खुदा ने उनके लिए बादशाह को भेजा, खुदा ने उनके लिए 42 बादशाहों को भेजा, क्योंकि खुदा ने उनको चुन लिया था। लेकिन शायद उनके लिए मुश्किल था खुदा को चुनना। दोबारा से वो गुलाम हुए थे। परिसर के लोग इंतजार कर रहे थे कौन हमें निकालेगा, हमारा चरवाहा कब आएगा, हमारा मसीहा कब आएगा। और जब मसीहा आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने शागिर्दों को, अपने कास्टों को यीशु के पास भेजता है। ऐ उस्ताद, तू अपने बारे में क्या कहता है, तू अपने हक में क्या कहता है। हाँ, हम जानते हैं तू अंधों की आंखों को खोलता है, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, तू मुर्दों को जिंदा करता है। लेकिन तू अपने बारे में क्या कहता है। कहने वाला मसीहा तू ही है, कहने वाला चरवाहा तू ही है, कहने वाला आपकी बादशाह तू ही है, या फिर हम अपने इंतजार को जारी रखें। क्योंकि बनी इसराइल के लोग दोबारा से गुलाम बन चुके थे। खुदा ने इनको चुना, खुदा ने इनको निकाला, वादा की सरजमीन पर पहुंचे, लेकिन दोबारा से गुलाम बन चुके थे। आपको भी खुदा ने चुना। आज भी हम गुलाम हैं, आज भी लोगों ने चुना कहते हैं। किस चीज की कमी है। हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, जब यीशु के पास आता है कि इस्राइल का अगला बादशाह चुनने के लिए, यीशु के साथ बेटे दाऊद उसकी नजरों से दूर खेतों में काम कर रहा था। जब वो यीशु के पास आते हैं तो सैमुअल उसके सारे बेटों को देखना चाहता था। यीशु अपने 7 बेटों को दिखाता है, मेरा पहला बेटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। सैमुअल उन 7 बेटों का इकरार करता है। इसी कदम तरह के कोई और बेटा भी है। हाँ, मेरे एक और बेटा भी है, लेकिन इस काबिल नहीं कि वो इस्राइल का, वो यहूदा का वो बादशाह बने। सैमुअल कहते हैं, मैं तेरे उस बेटा को देखना चाहता हूं। किसी अपने एक बेटा को भेजता है और वो दाऊद को लेकर आते हैं। जब दाऊद आता है तो सैमुअल पहली निगाह करते हैं तो जान जाते हैं कि ये इस्राइल का बादशाह, क्योंकि खुदा ने दाऊद को चुना और उसके यीशु के 7 बेटों को अलग कर दिया। वो हाजिर थे, नौजवान थे, तालीम याफ्ता थे, कादावर थे, लेकिन खुदा ने दाऊद को चुना। लेकिन जब सैमुअल ने दाऊद को मसला किया, जब खुदा ने उसको चुन लिया, उसी वक्त वो बादशाह नहीं बनता, उसी वक्त उसको तख्त नहीं मिलता। कई साल गुजर जाते हैं, खुदा ने दाऊद को चुन लिया था। अब दाऊद नबी ने खुदा को चुना था और फिर उसने बादशाह बनना था। खुदा ने दाऊद को चुन लिया। अब किसने चुना था?
अब दाऊद नबी ने भी खुदा को चुनना था। उस वक्त दाऊद के भाई जंग में शामिल थे। इला की वादी में एक तरफ फलस्तीन की फौजें, एक तरफ खुदा के लोग। यसी दाऊद को कहता है कि जा अपने भाइयों को तू खाना देकर आ। अब सोचें दाऊद कह सकता है मैं नहीं जाऊंगा, खुदा ने मुझे चुन लिया है, नबी ने मुझे चुन लिया है, मैं तो इस्राइल का बादशाह हूं, मैं तो यहूदा का बादशाह हूं, मैं अब ये काम नहीं करूंगा। खुदा ने उसको चुन लिया था, अब दाऊद ने खुदा को चुनना था। अगर वो आजिज़ ना बनता, अगर वो तरबियत को ना लेता, अगर वो शरीयत का इनकार करता, अगर वो खुदा के अहकामात का इनकार करता, बेशक खुदा ने उसको चुन लिया था, उसने तब तक बादशाह नहीं बनना था, तब तक उसने अपने तख्त को नहीं हासिल करना था, जब तक वो खुदा को ना चुनता। कह सकते हैं खुदा ने हमें चुना है, हम लोगों को बता सकते हैं खुदा ने मुझे चुना है। हाँ, खुदा ने आपको चुना है, लेकिन क्या आपने खुदा को चुना है? तो जब आप खुदा को चुनेंगे, फिर आप अपने तख्त को हासिल करेंगे, फिर आप अपनी बरकत को हासिल करेंगे, फिर आप अपनी सरफराजी को हासिल करेंगे, फिर आप अपनी कामयाबी को हासिल करेंगे। जब आप खुदा को चुनेंगे, उसने तो आपको चुन लिया। मेरे साथ ऐसा हुआ 2011 मैं छत पर सो रहा था, जब मुझे एक फोन कॉल आती है कि हम आपको स्कॉलरशिप देना चाहते हैं अमेरिका के लिए। रात का वक्त था, मई का महीना था, यही दिन थे, और मैं छत पर सो रहा था। शायद ख्वाब है, आप के इस वक्त कैसे मुझे कॉल करके ये थे कि हम आपको स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, सारी अपनी तालीम फ्री, रहना सहना खाना पीना, हम आपको अमेरिका में बुलाना चाहते हैं ताकि आप अपनी तालीम हासिल करें, 1 करोड़ का स्कॉलरशिप। मेरे लिए ख्वाब था, एक ड्रीम था, लेकिन नामुमकिन है। ये कोई फेक फॉरेन स्कैम, दिस इज नॉट रियल। ऐसा हकीकत में नहीं हो सकता। शायद मैंने ख्वाब देखा, मेरी मुश्किल था। जब मैं सुबह उठा, मैं सोचा कि वाकई क्या रात को कोई फोन कॉल आई थी, क्या वाकई मैंने किसी से बात की थी, क्या वाकई मुझे किसी ने स्कॉलरशिप ऑफर किया था। मैं सोच रहा था क्या वाकई मैंने किसी को अपना एड्रेस दिया था। मेरे लिए ख्वाब था। 10 दिन के बाद जब पोस्टमैन आता है, मैं देखता हूं स्कॉलरशिप के सारे डॉक्यूमेंट्स अमेरिका से मुझे महसूल होते हैं। आई वॉज शॉक्ड, मैं हैरान था। मैं खोलता हूं, देखता हूं, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा ने मुझे चुन लिया है। अब मैंने खुदा को चुनना है, खुदा ने फैसला कर लिया है, अब मैंने फैसला करना है। मैंने उस बरकत को लिया, पेपर खोली, देखी, और मैं इंटरव्यू ली। वैसा मैसेज सामने भी चल गया चंद दिनों के बाद, ऑफ कोर्स टाइम लेने के बाद। तो जब मैं एम्बेसी में बैठा हुआ था, तो एक पिक्चर लगी हुई थी उस रूम के अंदर। मैं उसको देख रहा था, उसको लिखा हुआ था लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, अगर इस मुल्क में आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, अगर इस मुल्क में जाकर
लोग अपनी सरफराजी को हासिल करते हैं, अगर इस मुल्क में जाकर लोग कामयाब होते हैं, अगर सारी दुनिया के लिए ये वादा की सरजमीन बन चुकी है, अगर सारी दुनिया के लिए अमेरिका मुल्क के किनार बन चुका है, खुदा मैं भी इस मुल्क में जाना चाहता हूं, खुदा मैं भी सरफराजी को लेना चाहता हूं, मैं भी मिस्र से निकलना चाहता हूं, मैं भी यमान से निकलना चाहता हूं। खुदा ने चुन लिया था, अब मैंने खुदा को चुनना था। और मैं देख रहा था आज पूरी दुनिया के लिए अमेरिका की सरजमीन, यूरोप की सरजमीन मुल्क के किनार बन चुकी है, वादा की सरजमीन बन चुकी है। सारी दुनिया वहीं पर जाना चाहती है, वहीं पर बरकत मिलेगी, वहीं पर कामयाबी मिलेगी, वहीं पर हम अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो मैं इस पिक्चर को देख रहा था और मैंने दुआ करना शुरू कर दिया। बाकी लोग अपने इंटरव्यू दे रहे थे, किसी को यस किसी को नो, मैं दुआ कर रहा था। फिर मुझे आवाज आती है चौक नंबर 13, मैं खोलता हूं, विंडो में जाता हूं। I was thanking God, खुदा ने मुझे चुन लिया, अब मैंने खुदा को चुनना है। अगर मैं वादा की सरजमीन पर जाना चाहता हूं, अगर मैं मुल्क के किनार में जाना चाहता हूं, अगर मैं अपनी बरकत को लेना चाहता हूं, I was thanking God, मैं खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा था। चौक नंबर 13 विंडो पर किया। The lady asked me multiple questions. उस खातून ने सवाल किए, मैंने पूरी कोशिश की जवाब देने की जो मैं दे सकता था। उसका राइट साइड पर एक शेल्फ थी, उस शेल्फ में मुख्तलिफ कलर के पेपर्स पड़े हुए थे। सबसे ऊपर येलो, मैं खुदा अगर इसने ये पीले रंग का मुझे पेपर दिया, इसका मतलब यह है कि मैं वादा की सरजमीन पर नहीं जा सकता, मैं मुल्क के किनार में नहीं जा सकता। ऐ खुदा मुझे ये पेपर नहीं चाहिए। उसका हाथ नीचे जाता है, पिंक, मैं गॉड मुझे ये पिंक पेपर भी नहीं चाहिए, ये भी रिफ्यूजल। उसका हाथ और नीचे जाता है, ग्रीन। वैसे ग्रीन सिग्नल अच्छा होता है कि आप जा सकते हैं, लेकिन एम्बेसी में ग्रीन का मतलब भी इनकार होता है, मुझे ग्रीन पेपर भी नहीं चाहिए। पिंक, येलो, ग्रीन, लास्ट में एम पे वो पेपर था व्हाइट कलर। दिस इज व्हाट आई नीड, मुझे ये पेपर चाहिए। ऊपर से हाथ नीचे आया और बाद में उसने व्हाइट पेपर दिया। And she said, welcome to the USA. आप उनके किनारे में आ सकते हैं, आप वादा की सरजमीन पर आ सकते हैं, आप अपनी बरकत को ले सकते हैं, आपको मौका मिलेगा। खुदा ने आपको चुन लिया है, अब आपने खुदा को चुनना। बहुत से लोग जैसे बनी इस्राइल के लोग मुल्क के किनारे में जाकर भी दोबारा से वो गुलाम बन गए, दोबारा से उन्होंने गुर्बत को देखा, दोबारा से उन्होंने दुखों को देखा, दोबारा से उन्होंने परेशानियों को देखा। अपने मुल्क में जाकर भी, अपने घर में जाकर भी, क्योंकि खुदा को नहीं चुना था, खुदा ने उनको चुना था। वो नहीं फैसला कर रहे थे, मसीहा का इनकार किया। 2011 में मैं अमेरिका गया, 2015 में मैंने बाइबल में अपनी पीएचडी मुकम्मल की और मैंने खुदा से वादा किया था कि मैं अपने मुल्क वापस जाऊंगा, कोशिश करूंगा मैं अपने लोगों को मिस्र से निकालूं, मैं अपने लोगों को परेशानियों से निकालूं, मैं अपने लोगों को दुखों से निकालूं, मैं कोशिश करूंगा। मूसा नहीं, एक छोटा सा जवाब, मैं कोशिश करूंगा कि मैं चंद लोगों को, चंद खानदानों को मैं निकालूं गुर्बत में से, मैं निकालूं दुखों में से और बरकत इस जमीन पर लेकर आऊं ताकि वो बरकत का तजर्बा करे। खुदा ने इनको चुन लिया है, अब वो खुदा को चुन कर वो सारी बरकतों को ले सकते हैं। 2015 में
इसी जज्बा के साथ तालीम कबूल करने के बाद मैं पाकिस्तान वापस आ गया। क्या आप मसीह कौम को उठाना है? खुदा ने इस कौम को चुना है, खुदा इस कौम को बरकत देना चाहता है, खुदा इस कौम को सरफराज करना चाहता है। इनकी गलावारी कौन करेगा? इनका चरवाहा कौन भरेगा? इनको कौन उठाएगा? 2 साल के बाद 2017 में हमने क्रिश्चियन कंप्यूटर कॉलेज को शुरू किया लाहौर में, और 30 सालों में 600 से ज्यादा बच्चों को हमने इस कंप्यूटर कॉलेज में ट्रेन किया। राइट नाउ so many our students are working as independent entrepreneurs. कंप्यूटर के एडवांस कोर्सेज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने सिखाए। 600 से ज्यादा मसीही बच्चों के हाथों से हमने झाड़ू छुड़ा दिया। अच्छी बात नहीं? क्यों ऐसा लगता है जब लोग हमें चूड़ा कहते हैं, जब लोग हमें काफर कहते हैं, जब लोग हमारे हाथ में तरह तरह की नाहक बातें करते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। लेकिन इस जिल्लत को हम दूर कर सकते हैं जब हम एक दूसरे के बाजू बन जाएंगे। हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं एक शख्स यरूशलेम की तरफ जा रहा था, रास्ते में उसको मारा, कुचला, उसको जख्मी किया और बाद में उसको लूटा और बाद में उसको अधूरा छोड़ दिया। उसके पास से एक काहिन आता है उस रास्ते पर, काहिन उसको देखता है लेकिन देखकर अनदेखा करता है। फिर लावी आता है, वो भी उसको देखता है लेकिन देखकर उसको अनदेखा करता है। फिर सामरी आता है, सामरी उसको देखता है, उस पर तरस खाता है, उसको उठाता है, उसको तेल और बैग के साथ उसको बांधता है, अपने साथ सिराय में लेकर जाता है। हमारा सामरी कब आएगा? सालों से, दहाइयों से मसीह कौम को, पाकिस्तानी मसीह कौम को कुचला गया, मारा गया, लूटा गया और अधूरा छोड़ दिया गया। सालों से मसीह कौम भी रास्ते में पड़ी हुई है। इनके पास से कौन कौन गुजरता है? इनके पास से बड़े बड़े वजीर गुजरते हैं, बड़े बड़े चेयरमैन इनके पास से गुजरते हैं, बड़े बड़े एमएलए इनके पास से गुजरते हैं, बड़े बड़े हाकिम इनके पास से गुजरते हैं, बड़े बड़े काहिन इनके पास से गुजरते हैं, बड़े बड़े लावी इनके पास से गुजरते हैं। देखकर सारे अनदेखा कर देते हैं। हमारा सामरी कब आएगा जो पाकिस्तानी मसीह कौम को उठाएगा, तेल और मैं के साथ इनको बांधेगा और अपने साथ लेकर जाएगा, ताकि ये भी बरकत का तजर्बा करे, ताकि ये भी सरफराजी का तजर्बा, ताकि ये भी खुदा के मंसूबों का तजर्बा करे। सालों से मसीह कौम भी रास्ते में पड़ी हुई है, लेकिन लोग इनको देखकर अनदेखा कर रहे हैं। हमारे चर्च ने फैसला किया कि हम मसीह कौम को, अपने बच्चों को हम उठाना चाहते हैं। इनको मारा गया है, लूटा गया है, अब ये रास्ते में पड़े हुए हैं। हम इनके लिए सामरी बनेंगे। 600 बच्चों के हाथों से हमारी चर्च ने झाड़ू छुड़ाया। व्हाट इज नेक्स्ट? इससे आगे क्या करना है? ये तो हो गया, ये जारी रहेगा, लेकिन और क्या हम कर सकते हैं? जिस कौम को तूने चुना है, जो तेरे बेटे और बेटियां हैं, वो आज भी जिल्लत में है, वो आज भी दुखों में है, वो आज भी परेशानी में है, वो आज भी गुर्बत में है। इनको कैसे उठाएं? फिर 3 साल पहले एक प्रोग्राम आता है अंग्रेज स्कॉलरशिप। खुदा ने मुझे एक मौका दिया
one opportunity, one scholarship changed my life. एक स्कॉलरशिप ने मेरी जिंदगी को बदला. मैंने सोचा अगर एक स्कॉलरशिप अगर मेरी जिंदगी को, अगर मेरे खानदान को तब्दील कर सकती है, अगर यही मौका, अगर यही स्कॉलरशिप अगर हमारे मसीह बच्चों को अगर मिल जाए, अगर यूरोप जाते हैं, वादा की सरजमीन पर जाते हैं, बरकत की सरजमीन पर जाते हैं, ये अपने खानदानों के लिए, अपने लिए और बहुत से दूसरे खानदानों के लिए ये बरकत का वाहिद बन सकते हैं. पहले साल 2018 में हमने तकरीबन 500 से ज्यादा एप्लीकेशन सबमिट की हमारी स्कॉलरशिप के लिए. लिटरली डे एंड नाइट चर्च की टीम ने काम किया और ये पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बात था कि कोई चर्च की टीम मसीह कौम के लिए ट्रैवल एजेंट्स, कंसल्टेंट बन गई. लोगों ने तरह तरह की बातें की, लेकिन खुदा ने उनके मुंह बंद कर दिए. उन्होंने इल्जाम लगाए, हमारे बारे में नाहक बातें की, लेकिन खुदा ने सबके मुंह को बंद रखा. एक फादर की किसी से बात हुई तो उसने उनसे पूछा, फादर साहब, खुदा ने आपको इतनी बरकत दी है, इतना आपका नाम है, आप मसीह कौम के लिए कुछ करें. वो आगे से कहता है, हाँ मैं अपने बेटे को बाहर भेजना चाहता हूं. उसने भी कहा कि शायद मुझे समझ नहीं आई, और साहब मैं कह रहा हूं कि मसीह कौम के लिए कुछ करें. हाँ मैं अपने बेटे को बाहर भेजना चाहता हूं. असल बात ये है, बहुत से ऐसे जवाने हैं, बहुत से ऐसे कामी हैं, बहुत से ऐसे लाभी हैं जिनको सिर्फ अपना खानदान नजर आता है. आपका चरवाहा कैसा है, कैसा होना चाहिए? खुद गर्ल्स एवं या फिर गुड शेफर्ड, अच्छा चरवाहा जो आपको हरी हरी शाखाओं में बिठाए, आपको राहत के चश्मों के पास ले जाए, आपकी जान को बहाल करे, आपको बचाए, आपको छुड़ाए, आपको तसल्ली दे, आपको उठाए. हमारे चर्च ने फैसला किया कि हम मसीह कौम के लिए सामरी बनेंगे, हम मसीह कौम के लिए अच्छे चरवाहे बनेंगे और अपनी कौम को उठाने की कोशिश करेंगे. 2018 में पाकिस्तान के तमाम शहरों से तमाम डिनोमिनेशंस के बच्चे हमारे पास आए. ना हमने उनके चर्च का नाम पूछा, ना ये पूछा कि उनकी डिनोमिनेशन कौन सी है. मैं ये जानता था कि ये खुदा ने इनको चुना है. ये वसीम मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, और खुदा ने मुझे इनके लिए वापस भेजा है. मैंने इनको उठाना है क्योंकि बहुत से काहिन इनके पास से गुजर चुके हैं, देखकर अनदेखा किया. बहुत से लाभी इनके पास से गुजर चुके हैं, देखकर अनदेखा किया. इनके लिए सामने कौन बनेगा? हमने 500 से ज्यादा एप्लीकेशन सबमिट किया और खुदा हमने मोर्चा किया कि आज 50 से ज्यादा बच्चे यूरोप में स्टडी कर रहे हैं. 50 से ज्यादा बच्चों को 1 करोड़ का स्कॉलरशिप मिला. खुदा ने मुमकिन किया कि वो वादा की सरजमीन पर जाएं, बरकत की सरजमीन पर जाएं. खुदा ने उनके लिए बरकत का सरफराजी का दरवाजा खोल दिया. लेकिन हमने अपनी कोशिश को, अपने इस जज्बा को जारी रखा. फिर अगले साल, जैसे आप जानते हैं कि पिछले साल इस वबा ने दुनिया के सारे कारोबार को, स्कूल, कॉलेजेस, जिंदगी उधर भरण कर दिया. पिछले साल हम तकरीबन 400 से ज्यादा एप्लीकेशन सबमिट की, लेकिन कोविड की वजह से वो सारी की सारी एप्लीकेशन सस्पेंड हुई, रिजेक्ट हुई, सस्पेंड हुई. उन्होंने पिछले साल सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया. लेकिन इस साल दोबारा से जब हंगरी के स्कॉलरशिप आए, दोबारा से हमारे चर्च की टीम एक्टिव हो गई. चूंकि हमारे पास बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था,
ہمارے پاس ٹی وی چینل نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی. جس خدا نے آپ کو اچھا چرواہا دیا ہے، ایسے بہت سے خواتین نے ہمارا ساتھ دیا، ہماری کیمپین کو، ہمارے فلائٹس کو انہوں نے فیس بک پر، واٹس ایپ پر انہوں نے آگے فارورڈ کیا. اور اس سال ہمارے پاس 500 سے زیادہ بچے ہمارے پاس آئے. جنوری میں جب ساری ایپلیکیشن سبمٹ کی تو ڈائریکٹ ہم اتنی زیادہ محنت کہ لٹرلی دن رات ہم نے کام کیا ہے. میری اس سال بھی ہنگری گورنمنٹ ساری ایپلیکیشن کو سسپینڈ کر دے، لیکن اس بار ایسا نہ ہوا. خدا نے ڈبل پورشن میں ہمیں برکت واپس کی. پچھلے سال ساری ایپلیکیشن سسپینڈ ہوئی، اس سال خدا نے ڈبل میریکل کر دیا. اس سال کی جو اپروول ریٹ ہے وہ 90% سے بھی زیادہ اپروول ریٹ ہے. آپ کو اس سال 90% سے بھی زیادہ اپروول ریٹ آئی ہے. ہر روز بچے آ رہے ہیں، چرچ میں آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میری بھی اپروول آتی ہے، میں نے انٹرنس ایکسپٹ کر لیا ہے، میں نے انٹرویو پاس کر لیا ہے، اب میں بھی جاؤں گا خدا کی سرزمین پر. خدا نے مجھے چن لیا ہے، میں نے بھی خدا کو چن لیا ہے. اب میں برکت کا تجربہ کروں گا. اور میرا ایمان ہے کہ اس سال 100 سے زیادہ بچے یورپ جائیں گے، 100 سے زیادہ بچے خدا کی سرزمین پر جائیں گے اور اپنی برکت کو لیں گے. ہم کب ایک دوسرے کے لیے سامنے بنے گے؟ باہر سے کوئی نہیں آئے گا، دوسری قوموں کے لوگ نہیں آئیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ ابلیس دن رات منصوبے باندھتا ہے کہ میں ان کو چیروں، ان کو پھاڑوں، ان کی بستیوں کو میں جلا دوں. دن رات ایک بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انسان کے دل میں تو بہت سے منصوبے ہیں، لیکن اس کا ارادہ، اس کی مرضی، اس کا منصوبہ ہی قائم رہتا ہے. کیا اپنی زندگی میں خدا کے ارادہ کو، خدا کی مرضی کو مانتے ہیں؟ دن رات ہم بھی منصوبے مانتے ہیں، دن رات ابلیس بھی منصوبے مانتا ہے آپ کو چیرنے کے لیے، آپ کو پھاڑنے کے لیے. لیکن خدا نے آپ کو چنا ہے. اب آپ کی باری ہے کہ آپ نے خدا کو چننا ہے. اگر آپ اپنی برکت کو لینا چاہتے ہیں، اگر آپ مصر سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر آپ یمن سے نکلنا چاہتے ہیں، اب آپ فیصلہ کریں بہنیں بھائی کہ اب ہم نے خدا کو چننا ہے. خدا نے آپ کو چن لیا ہے. اگر آپ اپنے تخت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی سرفرازی کو لینا چاہتے ہیں، تو پھر خدا کو چنو. بائبل مقدس کی تربیت کو چن لیں. جب آپ لوگ خدا کو اول درجہ دیں گے، خدا بھی آپ کو اول درجہ دے گا. کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں خدا کو اول ترجیح دیتے ہیں. جب آپ خدا کو اول درجہ دینا شروع کر دیں گے، وہ بھی آپ کو اول درجہ دے گا. پھر آپ اپنی زندگی میں خدا کی برکت کو دیکھیں گے، میریکلز کو دیکھیں گے، اپنی شفا کو دیکھیں گے، نجات کو دیکھیں گے. ہم دیکھیں کہ بائبل مقدس میں مسیح نے جب مسیح کو مسلوب کر رہے تھے تو دو ڈاکو ساتھ تھے، دائیں اور بائیں. ایک لالتان کر رہا تھا، آزما رہا تھا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے ہمیں بھی بچا اور اپنے آپ کو بھی بچا. اگر تو مردوں کو زندہ کرتا ہے ہمیں بھی بچا اور اپنے آپ کو بھی بچا. آزما رہا تھا، لالتان کر رہا تھا. لیکن دوسرے نے کہا ہم گنہگار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم قاتل ہیں، ہم چور ہیں، ہم ڈاکو ہیں. میرے مسیح ہے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اس ڈاکو نے، اس چور نے، اس مجرم نے، اس قاتل نے میرے یسوع کو چن لیا اور میرے خدا نے اس کی نجات کا، تسلی کا، ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھول دیا.
آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں بہت سی کمیاں ہیں، آپ کی زندگی میں برائی ہے، گناہ ہے، چگلی ہے، جھوٹ ہے، مکاری ہے، اب یسوع کو چن کر دیکھیں، وہ آپ کے لیے برکت کا دروازہ کھول دے گا، وہ آپ کے لیے شفا کا دروازہ کھول دے گا، آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھول دے گا۔ ایک بار چن کر دیکھیں، پھر آپ اپنی زندگی میں خدا کی ساری برکات کو دیکھیں گے، کیونکہ آپ تم نہیں ہیں، آپ سر، کیونکہ آپ کے لیے، پاکستانی مسیح قوم کے لیے، ساری دنیا کے لیے خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا قربان کیا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی، اس نے کیا کر دیا؟ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک ہو جائے، ہلاک نہ ہو، بلکہ پورے 10 سال، کافی ہے 100 سال، 1000 سال ہمیشہ کی زندگی۔ جو خدا ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے وہ برکت دے سکتا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے وہ آپ کو سرفراز بھی کر سکتا ہے، وہ آپ کو برکت دے سکتا ہے، وہ آپ کو سرفراز کر سکتا ہے، وہ آپ کو دنیا کی ساری برکات دے سکتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں خدا نے ایوب نبی کو کتنی زیادہ برکت دے رکھی تھی۔ اہل مشرق میں وہ سب سے امیر شخص تھا، 7000 بھیڑ، 3000 اونٹ، نوکر چاکر، فصلیں، کھیت، دولت، شہرت، 7 بیٹے، 3 بیٹیاں۔ خدا نے ایوب نبی کو بہت زیادہ برکت دے رکھی تھی، خدا نے اس کو چنا، اور ایوب نبی نے بھی خدا کو چنا ہوا تھا، اور ہر وقت وہ خدا کی شکر گزاری کرتا تھا۔ ہر وقت جب ابلیس نے اس کے ساتھ بیٹوں کو چھین لیا، بیٹیوں کو چھین لیا، 7000 بھیڑوں کو چھین لیا، 3000 اونٹوں کو چھین لیا، سب کچھ اس کا جاتا رہا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا۔ اس نے کہا اے خدا تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا انعام کون پائے؟ خدا نے اس کو چنا، اس نے خدا کو چنا، اور جب خدا نے دوبارہ سے اس کو بحال کیا، کتنی بھیڑیں؟ 14000 بھیڑیں، 6000 اونٹ، 1000 جوڑی بیل۔ خدا نے دوبارہ سے ڈبل پورشن میں اپنی ساری برکت اس کو واپس کی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنی برکت کو کھویا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنی سرفرازی کو کھویا ہے، اے فیتھ ان گاڈ، خدا پر ایمان رکھیں، وہ ڈبل پورشن میں آپ کو واپس برکت دینے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو چنا ہے، اب آپ نے خدا کو چننا ہے۔ آمین۔ آئیں اپنے آپ کو بند کریں گے اور ہم سب دعا کریں گے، اور ہمارے ساتھ لاہور سے ایل سلیم ہمارے ساتھ ہیں، میں چاہوں گا کہ آئیں گے اور دعا میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ اپنے آپ کو بند رکھیں اور دعا کریں۔ خدا نے آپ کو چنا ہے، اب آپ نے خدا کو چننا ہے۔ آج سے آپ فیصلہ کریں گے کہ اے خداوند، آج سے میں نے تیرا بیٹا اور بیٹی بنا ہے، آج سے میں نے تیری تربیت کو، تیری شریعت کو، تیرے احکامات کو میں نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، کیونکہ تو نے مجھے چن لیا۔ آج میں نے چننا ہے، آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تجھ سے جدا ہو کر میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن تجھ میں رہ کر میں سب کچھ کر سکتی اور کر سکتا ہوں۔ آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی برکت کو، اپنی سرفرازی کو، اپنے معجزہ کو، اپنی شفا کو، جسمانی اور روحانی شفا کو لینا چاہتے ہیں تو یسوع کو اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیں، کیونکہ اگر آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے
फिर आप अपनी जिंदगी में उसकी बरकत को देखें, उसकी कुदरत को देखें, उसके जलाल को देखें, क्योंकि खुदा ने आपको चुना है और आज आपने उसको चुनना है। हम दुआ करें। Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.